लास्ट टाइम क्या किया था हम लोग ने? आई थिंक वी स्टार्टेड विद द मोशन इन वन प्लेन ना, बट नाउ आई हैव बीन इन्फॉर्म दैट योर मैथमेटिकल मेथड्स हैव नॉट बीन डन. हो गया पूरा टॉपिक को? लास्ट लेक्चर क्या करवाया है? श्रेयस सर पढ़ा रहे हैं क्या करवा रहे हैं अभी? ये हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, कैलकुलस इज डन, डिफरेंशिएशन इज डन. ओके, सो व्हाट विल डू इज विल डू स्केलर्स एंड वेक्टर्स. पहले वो कंप्लीट करते हैं हम लोग, देन विल स्टार्ट विद मोशन वन प्लेन. ठीक है, तो गिव द न्यू टॉपिक स्केलर्स एंड वेक्टर्स करके वो करेंगे हम लोग. सो आई थिंक नेक्स्ट 2 टॉपिक्स विल बी एबल टू कंप्लीट स्केलर्स एंड वेक्टर्स. चलो, नाउ प्लीज डोंट टॉक, एंड दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू नो दिस टॉपिक वेरी वेल देन योर लाइफ विल बी वेरी इजी इन 11th एंड 12th. फिजिक्स में ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज होगा बार बार, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, मैग्नेटिज्म, बहुत जगह भी यूज होने वाला है ये चीज़. ठीक है, तो मुझे बताओ फटाफट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी? व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? The physical quantity which will have only magnitude but no direction. Example: speed, distance, mass, energy, power. They are all time. That is right. That is what all scalar quantities. What is a vector quantity now? The quantity which will have magnitude as well as direction. Example: displacement, velocity, force, etc. Correct. So now our topic is based on scalars and vectors, and we'll see how can we add, subtract. अरे क्या हो गया भाई, क्यों बात कर रहे हैं इतना? बात करेगा तो मैं बाहर कर दूंगा, बात मत कर अभी. जो भी डाउट है मेरे को पूछ, ठीक है? ओके, सो टॉपिक इज बेस्ड ऑन स्केलर्स एंड वेक्टर्स. तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट वेक्टर्स नाउ. हाउ कैन वी ऐड, हाउ कैन वी सब्ट्रैक्ट, हाउ कैन वी मल्टीप्लाई एंड हाउ कैन वी डिवाइड. हम वो देखेंगे वेक्टर्स को कैसे. तो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डू वी एक्सप्रेस एनी वेक्टर क्वांटिटी. What are the 2 important things we'll always express in vector quantity? We will express it in magnitude as well as direction. Let's say, suppose if I say, acha, what is the symbol we use for speed? V? Yes or no? Let's say the speed of the body is 10 meter per second. Correct. Now if I say that the speed of the body is 10 meter per second due east. So can you tell me now this speed will become velocity? Yes or no? I have given what a direction. So for a vector quantity we always put an arrow. Correct. So this will become a vector quantity. So can I say this 10 is nothing but what? Magnitude. This is what? And this is what? Direction. So this is how I always express my vector quantities, in magnitude and direction. Yes or no? But all the time expressing this quantity by writing due east, due west, due north, due south. Then you have different types of direction also. You can go northwest, northeast, southwest, southeast. So it's very inconvenient to write all these things again and again. So how do we express vector quantity in direction and magnitude? We'll do that also today. And one more thing, how do we express a vector quantity graphically now? Graphic matlab when we'll draw diagrams to express vector quantity, how will we do that? We'll see that also today. So okay, so we'll express this vector quantity graphically by drawing a segment, a line segment. Okay, let's say this is vector P, the name of the vector is P, and this is how I always express any vector quantity, by drawing a line segment. So you can see in this you'll always have a tail. This is the end point, this is called tail, and this is called head. So whenever you express any physical quantity, you always draw a line segment where you'll have a tail and a head. Okay, now similarly if I draw another vector quantity like this, let's say Q. What difference can you observe now here between P and Q? Can I say direction is same? Yes, they're both going towards right. What's the difference? How do you determine the difference here? You saw the length of the vector. You saw what? Length of the vector. So this length of the vector will also give you what? The magnitude of vector. क्या देगा वो? Magnitude of vector. तो vector P और vector Q में किसका magnitude ज़्यादा है? P का ज़्यादा है, और Q का क्या है? कम है. समझ में आ रहा है? So this is how we represent any vector quantity graphically, by drawing a line segment where you'll have a tail and a head. Is it clear? समझ में आ रहा है? तो first take down. फटाफट पहले खुद से लिख लो. What is the scalar quantity? What is the vector quantity? Write examples also, and also draw this neatly. This is how we'll represent vector graphically.
Finished? Okay, now we'll see. Please also draw this. So the length of the vector will give you the magnitude of vector. So whenever I need to compare two vector quantities, I will always compare on the basis of their length. तो यहाँ पे हमको क्लियरली मालूम पड़ रहा है P का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और Q का मैग्नीट्यूड कम है. ठीक है. Okay, next now very very important. Now understand this concept. This is very novel concept for you guys. तुमने कभी इसको पढ़ा नहीं है. So we'll see now types of vectors. अब एक एक करके एक टाइप ऑफ वेक्टर करेंगे हम. ठीक है. फर्स्ट टाइप is called null vector, or we also call it as zero vector. And don't you think the name itself is pretty self-explanatory? Yes or no? What is the meaning of word null? Zero. Zero means, can I say when the magnitude of any vector will be what? Zero. Can you give an example where the magnitude of vector is zero? Suppose if the body is stationary, what is the velocity of the body? Zero. Obviously, if the body is stationary, the velocity of the body has to be zero. Similarly, what is the acceleration of the body in that case? Zero, because there is no change in velocity. Velocity is zero. Yes or no? So can I say vector quantity, velocity is a vector quantity, and so is acceleration. So can I say velocity is nothing but what? Zero. It is what? Zero. Acceleration is also what? Zero. This is called null vector. What do we call it? Null vector. Is it clear? So please take down first. Give the heading types of vectors. Types of vector. First, null vector, or it is also called zero vector. Null vector or zero vector. Bracket. Or arbitrary. What is the meaning of word arbitrary? Random. Now suppose if the body is stationary, what is the direction of the body at rest? कोई direction है क्या? Arbitrary direction है. But can I get acceleration vector as zero even if the body is in motion? No, not possible. अच्छा मुझे बता पहले बताओ what is the meaning of acceleration? ये मैंने last time बताया था. Change in velocity. Correct. Now just take an example where a body is moving with a uniform velocity. Uniform मतलब constant velocity. तो अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी हमेशा? जीरो. अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई तो उसकी एक्शन कितनी हो गई? जीरो. तो इज इट पॉसिबल दैट द एक्सेलरेशन वेक्टर कैन बी जीरो इवन इफ द बॉडी इज इन मोशन? यस. अच्छा अब बॉडी तो मोशन में है ना, तो बॉडी का डायरेक्शन भी होगा कुछ. यस और नो? क्या होगा? डायरेक्शन भी होगा. तो लेट्स से बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स राइट विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यस और नो? तो डायरेक्शन क्या है उसका? राइट में, लेकिन एक्सेलरेशन वेक्टर की वैल्यू क्या है? जीरो. उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? जीरो हो गया. समझ में आ रहा है? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जीरो हो सकता है लेकिन उसका डायरेक्शन तो हो सकता है क्योंकि बॉडी मूव हो रही है राइट में. समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो लिखो उसमें इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज जीरो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन और आर्बिटरी. आर्बिटरी मतलब रैंडम, और आर्बिटरी इज कॉल्ड जीरो वेक्टर और नल वेक्टर. इज कॉल्ड जीरो वेक्टर और नल वेक्टर. Zero vector or null vector. You can give an example. If the body is stationary, then velocity vector is zero. Velocity is zero. Acceleration is also zero. If the body is stationary, velocity is zero, and so is acceleration. Okay. Second type of vector now, very very important. Null vector we won't be using so much while calculations, but this type of vector will be using a lot throughout 11th and 12th. Okay, now let's understand this with an example. Okay, suppose there's a body and there's a force acting on the body, say in 10 Newton. Okay. Another force is acting on this body, same body, say 20 Newton. Can you tell me what is the net force acting on this body right now? What is the net force acting on this body right now? 30 Newton. Why both the forces are acting in upward direction, right?
So the total force acting on this body is how much? 30 Newton. Correct? Now similarly, if I take the same body and I replace with a single force 30 Newton, do you think effect will be different? No, same effect. भाई जो ही 30 न्यूटन इफेक्ट कर रहा था बॉडी पे, वो ये 30 न्यूटन की फोर्स भी क्या करेगी? सेम इफेक्ट देगी उसको, सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, यस और नो? तो इस फोर्स को हम लोग कहने से दिस फोर्स इज कॉल्ड टोटल ऑफ 10 न्यूटन 20 न्यूटन, दिस इज कॉल्ड टोटल, या हम उसको क्या बोलते हैं फिजिक्स में? रिजल्टेंट. क्या बोलते हैं उसको? रिजल्टेंट फोर्स. सो 30 न्यूटन इज व्हाट? रिजल्टेंट फोर्स. एंड फोर्स इज व्हाट? अ वेक्टर क्वांटिटी. अच्छा, अब अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा वेक्टर क्वांटिटी से, इसको मैं बोल देता हूँ F1 वेक्टर और इसको बोल देता हूँ मैं F2 वेक्टर. तो F1 वेक्टर और F2 वेक्टर दोनों को ऐड करूंगा तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? 30. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं. तो कहने से रिजल्टेंट वेक्टर इज दैट वेक्टर which gives you the same effect produced by individual vectors, yes or no? Which is the same effect produced by individual vectors. भाई ये जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे 30 न्यूटन का भी क्या करेगा? सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा बॉडी पे, उससे कुछ भी चेंज नहीं होगा. समझ में आ रहा है? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टेक डाउन नेक्स्ट रिजल्टेंट वेक्टर. Resultant vector, right? Resultant vector is a vector. Resultant vector is a vector which produces the same effect as all other vectors together. Which produces the same effect as all other vectors together. Finished? Okay. So can you tell me what is the direction of this resultant vector right now in this very same case? Upwards. It is what? Upwards. भाई ये दोनों फोर्स ऊपर लग रही थी ना, तो रिजल्टेंट वेक्टर से अगर मैं रिप्लेस करूंगा तो उसका डायरेक्शन भी क्या होगा? ऊपर ही होगा. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके. नाउ नेक्स्ट, नाउ थर्ड देखो, अब ध्यान से देखो, एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों बात कर रहे हो भाई? क्यों बात कर रहे हो? क्या समझा रहे हो उसको? हम लोग को भी समझाओ. क्या हो गया? नहीं बताओ क्या हो गया? सर अगर 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ से लग रहा है और 20 न्यूटन का यहाँ से लग रहा है तो आफ्टर सम टाइम वो ऐसे टिल्ट हो जाएगा. क्या हो जाएगा? और रोटेशनल मोशन हो जाएगा. सही है, लेकिन अभी वो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो अभी हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है. रोटेशनल मोशन लेकिन कब होगा ये भी तो बताओ. अच्छा, तुम इतना जा रहे हो डिटेल में, तो और डिटेल में जाते हैं. ये कब होगा फिर? टिल्ट कब होगी बॉडी? रोटेशनल मोशन कब होता है बॉडी में? ये तो सबने पढ़ा होगा ना स्कूल लेवल पे. क्या होता है रोटेशनल मोशन? कब होता है? जब बॉडी क्या होगी? फिक्स्ड होगी टू अ पॉइंट. कब होगी? फिक्स्ड होगी टू अ पॉइंट. रोटेशनल मोशन इज ऑब्जर्व इन अ बॉडी व्हेन द बॉडी इज पाइवेटेड. फिक्स को क्या बोलते हैं फिजिक्स में? पाइवेटेड अ पॉइंट. जब बॉडी फिक्स होगी तभी तो बॉडी क्या होगी? घूमेगी ना. ये सब में अभी हमको उसके बारे में पढ़ना नहीं है, ठीक है? छोड़ दो अभी वो. पहले ये देख लो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे हम निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट है अभी. चलो एक देखो और, अब ध्यान से देखो एक चीज और. सपोज आई हैव वेक्टर ए, ठीक है, एंड आई हैव अनदर वेक्टर. कैन आई से बोथ दीज वेक्टर्स आर इक्वल? यस और नो? द लेंथ ऑफ द वेक्टर इज ऑल्सो सेम and the direction is what? Also same. These kind of vectors, the vectors which have the same magnitude and same direction, these vectors are called what? Equal vectors. क्या बोलेंगे इसको? Equal. So I can say vector A is nothing but equal to what? Vector B. लिख सकता हूँ मैं. डायरेक्शन दोनों का क्या है? एग्जैक्टली सेम है, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है? एग्जैक्टली सेम है. तो कंडीशन यही है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. तो सिमिलरली नाउ अब मुझे बताओ, क्या ये दोनों वेक्टर्स इक्वल है? क्या डायरेक्शन दोनों का सेम है? हाँ. लेकिन क्या मैग्नीट्यूड सेम है? तो ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है पर डायरेक्शन क्या है? सेम है. अच्छा ध्यान से देखो, कहने से दे आर बोथ पैरेलल. दोनों क्या है? पैरेलल है. ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल वेक्टर्स. क्या बोलेंगे इसको? पैरेलल वेक्टर्स. क्लियर है चीज? तो नेक्स्ट ले लो प्लीज, इक्वल वेक्टर्स. कैन आई कॉल देम एज इक्वल वेक्टर्स? यस. Why? Direction is now what? Changed.
भाई इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है, इसका डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट में, दोनों का डायरेक्शन अलग हो गया, अपन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम. सो द टू वेक्टर्स विच हैव सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शंस, डिफरेंट भी नहीं, क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शंस, वैसे वेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर्स. क्या बोलेंगे इसको, अब नेगेटिव क्यों बोलेंगे, देखो ए साइड है बी साइड है, तो मैं यहाँ पे माइनस साइन डाल दूंगा ना, क्या डाल दूंगा मैं, माइनस साइन, तो ये क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव वेक्टर्स बनेगा. क्लियर है चीज़, तो प्लीज टेक डाउन नेक्स्ट नेगेटिव वेक्टर. हाँ, अगर ये मैं बी को, अगर ये इसको मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो ये मेरे लिए नेगेटिव हो जाएगा, एक ही बात है ये. टेक डाउन. If the magnitude of a vector is same, but direction is opposite, to that of a given vector, is called negative vector. It's called negative vector. ये कॉपी कर सकते हो तुम लोग. Finished? So similarly now, suppose, yes, sorry, हाँ वो सेम होगा, सिंबल्स, ये सिंबल है वेक्टर क्वांटिटी का, वो हम ऐसे ही रखते हैं, ऊपर एरो डालते हैं क्वांटिटी के, ठीक है. अब मुझे बता दो, आर दे कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर, क्या भी नेगेटिव वेक्टर्स हो गए, नहीं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, चेंज. तो ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया ना, क्या हो गया, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया, और डायरेक्शन तो अलग है ही, ऑपोजिट ही है डायरेक्शन. तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स. क्या बोलेंगे इसको, एंटी पैरेलल. भाई एक दूसरे को एंटी पैरेलल है, ये पैरेलल थे और ये क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स है. क्लियर है चीज़, तो ये चीज़ याद रखनी है प्लीज, ठीक है. तो कैन एंटी पैरेलल वेक्टर्स बी नेगेटिव वेक्टर्स, yes, anti-parallel vectors can be negative vectors, but can negative vectors be anti-parallel vectors, no, क्योंकि नेगेटिव वेक्टर्स में क्या होगा, हमेशा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए. क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए. डायरेक्शन तो ऑपोजिट होगा दोनों में, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. क्लियर है चीज़. तो अब तक कितने टाइप के वेक्टर्स हम लोगों ने पढ़ लिए, कौन से हो गए हमारे, नल वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, ठीक है. अब आगे आते थोड़ा सा और भी इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं हम. चलो नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर जो कि तुम बहुत यूज करने वाले हो अभी आगे वाले टॉपिक्स में भी, उसका मतलब होता है पोजीशन वेक्टर. अब देखो पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. तो आई होप सब लोगों ने ग्राफ तो किया होगा मैथ में कभी ना कभी. तो मैथ ग्राफ के बेसिक सबको आता होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, एक ओरिजिन होता है. अच्छा, कन्वेंशनली ओरिजिन के हमेशा राइट में हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव. ओरिजिन के लेफ्ट में क्या लेते हैं, नेगेटिव. ओरिजिन के ऊपर क्या लेते हैं, पॉजिटिव. ओरिजिन के नीचे क्या लेंगे, नेगेटिव. इतना सबको पता है कि नहीं, एटलीस्ट एक्स और वाई एक्सिस में, ठीक है. और देखो ध्यान से, सपोज मैंने यहाँ पे ले ली, ये मेरी वाई एक्सिस हो गई और ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई, एंड दिस इज कॉल्ड ओरिजिन. Let's assume I have a particle which is initially kept at origin and now this particle starts moving. पार्टिकल मोशन में आया, मूव किया, पार्टिकल ओरिजिन से यहाँ पे पहुँच गया, ये पॉइंट में पहुँच गया, ठीक है. इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं P. एंड लेट्स से इसने लेंथ कवर की कितनी, 5 मीटर की, यस और नो, ठीक है. तो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल, तो मैं क्या बोलूँगा आंसर, बाई 5 मीटर. अच्छा, क्या डायरेक्शन में मूव हुआ ये, अलॉन्ग एक्स एक्सिस. किस में हुआ ये, अलॉन्ग, भाई अब ये मेरा चोजन डायरेक्शन है, राइट. तो ये मूव हुआ अलॉन्ग एक्स एक्सिस.
अच्छा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के नेगेटिव एक्स एक्सिस? पॉजिटिव, ये कहाँ गया? अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यस और नो? तो मैं इसका कैसे लिखूंगा? अब इसका अगर मुझे पोजीशन लिखना था मैं लिखूंगा भाई, पहले मैग्नीट्यूड लिखूंगा। मैग्नीट्यूड कितना है? 5 है, 5 इज द मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या लिखूंगा मैं हमेशा? अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या लिखूंगा मैं? अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। समझ में आ रहा है? दिस इज हाउ आई ऑलवेज एक्सप्रेस माई वेक्टर क्वांटिटी विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज एक पार्टिकल और एक था यहाँ पे ओरिजिन पे, वो ऊपर की तरफ गया यहाँ पे ऐसे क्यू पॉइंट तक, उसने कवर किया 6 मीटर। अब मुझे बताओ मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगा अपना पोजीशन वेक्टर? 6 मीटर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। समझ में आ रहा है कैसे करूंगा मैं? अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। इज इट क्लियर? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। सो जनरली पोजीशन वेक्टर इज डिनोटेड बाय सिंबल स्मॉल r, ठीक है? इससे हम डिनोट करते हैं, पर यू कैन यूज एनी वेरिएबल। बुक में तुम्हारे r यूज किया, पर यू कैन यूज एनी वेरिएबल। समझ आ रहा है मैं क्या लूँ? तो प्लीज टेक डाउन नेक्स्ट पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर देखो, a vector which gives the position of a particle, a vector which gives the position of a particle, a vector which gives the position of the particle at a point, a vector which gives the position of a particle at a point with respect to किसके रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं पोजीशन? कहने से विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ओरिजिन से यहाँ जा रहा है, ओरिजिन से ऊपर जा रहा है। ओरिजिन मेरा रेफरेंस पॉइंट है। तो विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ अ chosen coordinate सिस्टम। मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सी चूज की है यहाँ पे? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मैं जी एक्सिस भी ले सकता था, मैं कोई भी ले सकता हूँ, डायरेक्शन मेरे पे है, ठीक है? सो ऑफ अ चोजन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। ओके, so this is how symbol will use is small r. जनरली हम ये यूज करते हैं पोजीशन वेक्टर के लिए, बट यू कैन चेंज द वेरिएबल इफ यू वांट। चलो अब आगे आते हैं थोड़ा सबसे इंपॉर्टेंट। नाउ विल लर्न हाउ टू एक्सप्रेस अवर वेक्टर क्वांटिटी नाउ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, वो देखते हैं हम, ठीक है? तो लेट्स अज्यूम वी हैव अ वेक्टर m, कोई इस तरीके से वेक्टर m है। तो वेक्टर m को अगर मुझे एक्सप्रेस करना है तो मुझे सबसे पहले क्या एक्सप्रेस करना पड़ेगा? उसका मैग्नीट्यूड। क्या करूंगा मैं? मैग्नीट्यूड। अब देखो मैं जो सिंबल यूज कर रहा हूँ, लेट्स सी कितने लोगों को पता है इसका मतलब क्या होता है। इसका क्या मतलब होता है? मॉड। इसका क्या मतलब होता है? मॉड मतलब क्या होगा? एब्सोल्यूट वैल्यू। उसकी जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू है मैं वो लिखूंगा यहाँ पे। पढ़ा है कभी मॉड के बारे में? नहीं पढ़ा हुआ है? चलो मैं बता दूँ उसका मतलब क्या होता है। मैं फिर से वो एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज एक बॉडी मूव हो रही है, ठीक है? ये डायरेक्शन में मूव हो रही है और इसकी स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? और ये लेट्स से इट्स मूविंग ड्यू ईस्ट। तो कैन आई कॉल दिस एज वेक्टर वेलोसिटी? यस और नो? बराबर है? अच्छा, मैंने लास्ट टाइम में शायद तुम लोग से डिस्कस किया होगा, व्हेन द बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, कहने से उस केस में स्पीड और वेलोसिटी एक ही हो जाएगी। यस और नो? व्हेन द बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। तो स्पीड और वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो कहने से वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट? 10 ओनली। यस और नो? भाई स्पीड की वैल्यू कितनी थी? 10 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी कितनी होगी भाई? 10 ही तो होगी। डायरेक्शन मैंने ऐड कर दिया। क्या डायरेक्शन ऐड कर दिया? ईस्ट, इसलिए वो वेलोसिटी बन गई। वो समझ में आ रहा है? सो बेसिकली व्हेन द बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, आई कैन से द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट? द स्पीड ऑफ द बॉडी। किसकी इक्वल होगी वो? स्पीड ऑफ द बॉडी की इक्वल होगी। तो वैसे ही अगर मैं वेलोसिटी के बदले अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर ले लेता हूँ तो उसका मैग्नीट्यूड किसकी इक्वल होगा भाई? इसके
स्पीड के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? स्पीड के। तो यहाँ पे वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कितनी है? 10 है। तो यहाँ पे भी मैं क्या लिखता? 10 लिखता। समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्लियर है चीज? अच्छा, तो ये वेक्टर क्वांटिटी को मैंने क्या रख दिया? मैग्नीट्यूड रख दिया मैंने। अच्छा, वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव ऑल्सो ना। सपोज इफ द बॉडी वॉज मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट, तो कितनी हो जाती है उसकी वेलोसिटी? -10 हो जाती है। कितनी हो जाती? और उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती? 10। मैग्नीट्यूड कितना होता है? सिर्फ और सिर्फ 10 होता है। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? उसका डायरेक्शन। समझ आ रहा है मैं क्या रहा हूँ? तो ये मैंने मॉड इसलिए रखा है, इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू डालनी है हमको। ठीक है। अच्छा, अब और क्या चाहिए मुझे? मैग्नीट्यूड तो हो गया, और क्या चाहिए मुझे अब? डायरेक्शन। क्या चाहिए मुझे? अब तुम खुद देखो यहाँ पे ध्यान से, इज इट फिजिबल टू राइट ऑल द टाइम ये डायरेक्शन ऐसे अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस, और इस तरीके से कोई भी अगर डायरेक्शन में लूँगा तो मुझे बार बार लिखना पड़ेगा। तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम। तो देखो, पहले वेक्टर क्वांटिटी को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड हो गया, और अब उसका क्या लिखेंगे हम? डायरेक्शन। देखो ध्यान से, मैं सिंबल यूज़ कर रहा हूँ और बताऊँगा इसका मतलब क्या होता है। देख रहे हैं ऊपर ये जो मैंने साइन बनाया ना ऊपर, इसको बोलते हैं कैप। क्या बोलते हैं इसको? कैप बोलते हैं। दिस इज नथिंग बट कैप। अब देखो, ये जो मैंने यू बनाया ना, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको? अच्छा, ये तो पता है फिजिक्स में यूनिट का मतलब क्या होता है? 1। क्या मतलब होता है? 1। जैसे बोलूँगा यूनिट लेंथ, उसका मतलब क्या हो गया? लेंथ कितनी है? 1 मीटर। अगर मैं बोलूँगा यूनिट एरिया, तो एरिया कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। यस और नो? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यूनिट का मतलब क्या होता है? 1। तो ये जो वेक्टर, ये भी क्या है? एक वेक्टर है। इसकी वैल्यू हमेशा किसकी इक्वल होगी भाई? 1 की। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। तो बोलोगे सर इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा तो ये डायरेक्शन कैसे देगा? और मैं बताता हूँ डायरेक्शन कैसे देगा। ठीक है, ये सेम एग्जाम्पल लेते हैं तो अब समझ में आ जाएगा। पार्टिकल स्टार्टेड इट्स जर्नी फ्रॉम द ओरिजिन O, इट मूव टू पॉइंट P. What is the position of the particle at point P? So the answer is what? 5 meter along what? Positive x-axis. Yes or no? अब मुझे ये नहीं लिखना भाई बार बार, तो मैं क्या अज्यूम करता हूँ? तो इंस्टेड ऑफ दैट आई विल राइट पोजिशन ऑफ द पार्टिकल R। ठीक है, किस पे? एट P। मैं लिखूंगा 5, और यहाँ पे मैं एक सिंबल डाल दूंगा I, और ऊपर डाल दूंगा I कैप। ये मेरा हो गया एक्सप्रेशन ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो, ये I कैप का मतलब क्या है? सिंपल। जब भी एक बॉडी मूव करेगी अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे उसने कितना मूव किया? 5 मीटर। I की वैल्यू कितनी लूंगा मैं? हमेशा 1। तो 5 × 1 कितना हो गया? 5 मीटर। आ गया मेरा मैग्नीट्यूड। अच्छा, I कैप क्या डिनोट करेगा? कि द बॉडी इज मूविंग अलॉन्ग विच एक्सिस? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। खत्म हो गया। तो जब भी बॉडी अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूव करेगी, तो मैं हमेशा उसको क्या करूंगा? ये मैग्नीट्यूड दे देगा, और क्या दे देगा? ये डायरेक्शन देगा। आई कैप क्या रिप्रेजेंट करेगा? आई कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हो गया। सिमिलरली अगर मेरा ओरिजिन से इस साइड घूमता, बॉडी जाती इस साइड, लेट्स से यहाँ पे मैं एक आर ले लेता हूँ, और लेट्स से वो चली 4 मीटर, तो अब उसको कैसे एक्सप्रेस करूंगा मैं? कितना हो जाएगा ये? -5 आई कैप, -4 आई कैप। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 4। माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि अभी क्या हो गई? ओरिजिन के लेफ्ट में आ गई। और आई कैप क्या इंडिकेट करता है? अलॉन्ग नेगेटिव। माइनस आई कैप क्या इंडिकेट करेगा? अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इसको देखो मैं लिखूंगा कैसे? यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिखूंगा 4, और ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? माइनस आई कैप। क्या लिखूंगा? माइनस आई कैप। माइनस आई कैप क्या इंडिकेट करेगा? इट इज मूविंग अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्या होगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस। और आई की वैल्यू हमेशा कितनी होगी? 1 होगी। तो मुझे मैग्नीट्यूड भी मिल गया, और मुझे क्या मिल गया? डायरेक्शन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सिमिलरली ये पार्टिकल ने मूव किया टुवर्ड्स पॉइंट Q, तो मैं पूछूंगा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट Q, तो तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए? अब देखो, अगर मुझे वेक्टर पोजीशन वेक्टर निकालना है Q पे, तो मेरा आंसर आ जाएगा 6। किसके अलॉन्ग किया है? अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस के लिए जो मैं यूनिट वेक्टर लूंगा, उसका सिंबल होगा स्मॉल j। क्या होगा? स्मॉल j। तो 6j कैप का मतलब अब क्या हो गया? इट ट्रैवल 6 मीटर अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस। सिमिलरली अगर वो नीचे की तरफ जाता, तो क्या हो जाता? वो जो भी वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड प्लस ब्रैकेट में क्या था? -j कैप, दैट इज अलॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस। इज इट क्लियर? तो ये जो j कैप लिखा है मैंने, और ये जो i कैप लिखा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल? वी कॉल दिस एज यूनिट वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको? यूनिट वेक्टर। अच्छा, मैं पूछूंगा भाई ये यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? ये तो मैंने एग्जांपल में एक्सप्लेन किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब यहाँ पे तो मुझे मालूम नहीं ना कौन से एक्सिस में जा रही है, तो कहने से यूनिट वेक्टर का वही डायरेक्शन होगा जो इसका डायरेक्शन होगा। ये सर नो,
भाई जिस डायरेक्शन में ये वेक्टर क्वांटिटी जा रही है यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, वही होगा, सेम होगा हमेशा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आई कैप का मतलब क्या होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। वाई कैप का मतलब होगा यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। अलोंग वाई एक्सिस मतलब कुड बी पॉजिटिव, कुड बी नेगेटिव। सिमिलरली और एक एक्सिस होती है ना, जेड एक्सिस भी होती है, राइट। तो अगर उसके अलोंग पार्टिकल ट्रैवल करेगा तो उसको हम लोग डिनोट करेंगे सिंबल के से। किससे करेंगे, के कैप। तो अगर पॉजिटिव जेड एक्सिस होगा, पॉजिटिव का मतलब क्या होगा कहने से, इट इज कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड, यस और नो। ये एक्सिस कैसी होगी, आउट ऑफ द बोर्ड ना, तो ये हो जाएगी पॉजिटिव के कैप। अगर एक्सिस अंदर जा रही है बोर्ड के तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव के कैप। समझ में आ रहा है, क्लियर है चीज़? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, तो लास्ट अब वही है, टेक डाउन नेक्स्ट, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर देखो देखो, अ वेक्टर हैविंग अ यूनिट मैग्नीट्यूड, अ वेक्टर having a unit magnitude, a vector having a unit magnitude in a given direction, in a given direction, in a given direction is called unit vector. ठीक है, अब नीचे नोट करके लिखो, दिस इज हाउ वी एक्सप्रेस एनी वेक्टर क्वांटिटी मैथमेटिकली। जहाँ पे ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, ये क्या होगा, हमेशा यूनिट वेक्टर होगा। किसके डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। इसका जो डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो लेंगे, हम हमेशा सेम लेंगे। तो लिखो ऐसे, एम वेक्टर मॉड ऑफ एम, मॉड का मतलब होगा एब्सोल्यूट वैल्यू, और यू इसका मतलब होगा यूनिट वेक्टर, इसलिए मैंने यू यूज किया यहाँ पे, यूनिट वेक्टर। ओके, बट कन्वेंशनली तो हम हमेशा कौन सी कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करने वाले हैं, एक्स वाई और जेड, ये तीन यूज करने वाले हैं हम हमेशा, ठीक है ना। तो कन्वेंशनली हमारा सेट है ये, अलोंग एक्स एक्सिस होगा तो हम क्या यूज करेंगे, आई कैप, अलोंग वाई एक्सिस होगा तो क्या यूज करेंगे, जे कैप, और अलोंग जेड एक्सिस होगा तो क्या यूज करेंगे, के कैप। क्लियर है चीज? तो ये भी कहीं नोट करके लिख लो, अब ये काम आने वाला है आगे बहुत। तो कन्वेंशनली अलोंग एक्स एक्सिस हमेशा हम यूनिट वेक्टर कितना लेंगे, आई कैप। तो प्लस आई कैप मतलब अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव आई कैप मतलब अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, माइनस जे कैप मतलब अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, माइनस के कैप मतलब अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। ठीक है, मुझे बताओ इसकी पोजीशन पार्टिकल क्या होगी एट पॉइंट पी। व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट पी। पहले मुझे बताओ, देख के बताओ, ये पार्टिकल कैसे मूव हो रहा है। इज दिस पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, हाँ आगे जा रहा है ना पार्टिकल। इज दिस पार्टिकल मूविंग अलोंग वाई एक्सिस, हाँ ये ऊपर भी जा रहा है, ये आगे भी जा रहा है और ये ऊपर भी जा रहा है, ये दोनों डायरेक्शन में मूव हो रहा है। पॉसिबल है ना ऐसा? तो हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन इन टू डायमेंशन, है ना। मोशन इन प्लेन हम करने वाले जो नेक्स्ट, मोशन टू डायमेंशन पॉसिबल है, एक बॉडी मूव हो सकती है। जैसे एग्जांपल में अगर एक बॉल को थ्रो करता हूँ तो बॉल आगे भी जाती है एक्स एक्सिस, और बॉल ऊपर से नीचे भी गिरती है, तो अलोंग वाई एक्सिस भी गई वो, दोनों डायमेंशन में हो रहा है डायरेक्शन। ये एक्जैक्टली वैसे हो रहा है। अब उसकी पोजीशन पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर कितना होगा उसका पार्टिकल का, मुझे अगर इसका पोजीशन वेक्टर लिखना है आर का पी पे तो कितना हो जाएगा अभी। तो पहले तो अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, 3 है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 आई कैप या माइनस 3 आई कैप, 3 आई कैप लिखूंगा क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस पॉजिटिव है। तो ये क्या हो गया, 3 आई कैप, और कहाँ पे है इसका, 4 पे भी है, तो मैं क्या लिखूंगा, प्लस क्या होगा कितना, 4, दैट्स इट। दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। समझ में आ रहा है? इसको हम इस तरीके से रीड भी करेंगे, कितनी बार ये दिया होगा तो हमको समझ में आना चाहिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये कि एक पार्टिकल है वो आई कैप में कितना चला, 3, एक्स एक्सिस में 3 चला, वाई एक्सिस में कितना चला, 4 चला। अच्छा, इज इट पॉसिबल दैट पार्टिकल कैन मूव इन ऑल डायमेंशंस, एक्स वाई जी, क्या ये पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो अगर ये सपोज जेड एक्सिस में चलता होता तो मैं कुछ वैल्यू डाल देता,
लेट्स से मैं यहाँ पर डाल देता 2k क्या, इसका मतलब क्या हो गया अभी, इसका मतलब ये हुआ कि वो x एक्सिस में भी चला, y एक्सिस में भी चला और z एक्सिस में भी चला हो, या z एक्सिस जो भी तुम बोलते हो उसको। क्लियर है? इस तरीके से हम किसी भी पार्टिकल का क्या लिखते हैं, हम पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं हम इस तरीके से देख के ग्राफिकली। क्लियर है चीज़? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको चाहिए एक बार कॉपी कर लो, ये काम आएगा आगे, और आगे बढ़ते हैं हम फिर। और मैं तुमको एक क्वेश्चन दूंगा, तुम सॉल्व करके दिखाओ उसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो मैं वैसे ही कुछ सिमिलर एग्जांपल ले रहा हूँ जो हमने ऑलरेडी कर लिया है, कि सपोज इज अ बॉडी, इस पर एक फोर्स लग रही है 20 न्यूटन की, इस पर एक और एक फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की, और इस पर नीचे एक फोर्स लग रही है 40 न्यूटन की। What is the resultant of the force, resultant force acting on this body? कितना है? 10 न्यूटन। कैसे निकाला हो? 20 प्लस 10 को ऐड किया, क्योंकि दोनों ऊपर लग रही है 30 हो गई, और नीचे कितनी लग रही है 40, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 40 माइनस 30 प्लस 30 क्यों 40 माइनस 30 कितना आ जाएगा आंसर 10 न्यूटन। तो मैं बोलूँगा भाई रिजल्टेंट या नेट फोर्स, तुमने स्कूल में क्या पढ़ा है, नेट वर्ड पढ़ा है ना, तो मैं नेट बोलूँगा 10 न्यूटन। तुम इसी तरीके से लिख देते ना आंसर, यस और नो, तुमको तब मार्क्स मिल जाते थे। अब अगर तुमने हाई क्लास में ऐसे आंसर लिखा तुमको मिलेगा 0। पूछो क्यों? क्या हमने मेंशन नहीं किया, क्या मेंशन नहीं किया हम लोग ने? डायरेक्शन किधर मेंशन किया हमने भाई? 10 न्यूटन किधर लग रही है, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ? ये बॉडी मुझे बताओ, ये बॉडी कहाँ जाएगी भाई? नीचे जाएगी ना 10 न्यूटन से, तो इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए? डाउनवर्ड्स। क्या होना चाहिए? तब जाके फोर्स क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी ना, मैग्नीट्यूड हो गया उसका 10 न्यूटन और डायरेक्शन क्या हो गया? डाउनवर्ड्स। क्लियर है चीज़? समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ? वेरी सिंपल, ये तुम स्कूल लेवल से करते आ रहे हो राइट। अच्छा अब मैं इस थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ एग्जाम्पल को। इस पर एक फोर्स लग रही है F1 20 न्यूटन की, और एक फोर्स लग रही है इसमें F2 10 न्यूटन की ऐसे। अब मुझे बताओ इसका रिजल्टेंट कितना होगा फोर्स? क्या अभी 30 हो जाएगा? हो जाएगा 30? वहाँ बोल रहा है क्यों बड़ा 30 की हो जाएगा? मुझे बता पहले F1 फोर्स का डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड्स, वर्टिकली अपवर्ड्स है ना। F2 का फोर्स का डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड्स है, डाउनवर्ड्स है, राइट में है। इसका डायरेक्शन क्या है? क्या इस दोनों का वेक्टर का डायरेक्शन सेम है? तो कैन वी डायरेक्टली ऐड? नॉट पॉसिबल। अब इससे हम लोग एक चीज़ और क्या सीख रहे हैं कि वी कैन ऐड ओनली दोज वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन क्या होगा? हमेशा सेम होगा। स्कूल लेवल पे तुमने हमेशा वही चीज़ें ऐड की, इसका डायरेक्शन क्या होता था? हमेशा सेम होता था फोर्स का। लेकिन यहाँ पे अब फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया भाई? चेंज हो गया। F1 का डायरेक्शन कुछ और है, F2 का डायरेक्शन कुछ और है। तो कैन वी डायरेक्टली ऐड एंड गेट द रिजल्टेंट वेक्टर? नॉट पॉसिबल। तुम अगर करोगे तुमको 0 मिलेगा और टीचर मारेगा तुमको झापड़ अलग, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अब ऐसे केसेस में हम कैसे निकालते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, हमको वो पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि हम आगे बहुत 11th-12 में बहुत यूज़ करेंगे अब ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो वो देखते हैं अब कि हम कैसे निकालेंगे। अच्छा उसके पहले एक और क्वेश्चन है, मेरे को वो भी पूछना था। चलो मैं यहाँ पे पूछता हूँ सपोज, ठीक है। What is the resultant of these two vectors? We cannot add. Why? Velocity and तुमने बहुत जल्दी आंसर दे दिया। कितने लोग तो ऐड कर भी दिए होंगे इसको, है ना। अब मुझे बताओ दोनों को हम ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, एक वेलोसिटी और एक क्या है? फोर्स है। दोनों को कैसे ऐड करेंगे? समझ में आ रहा है? सो वी कैन ऐड ओनली दोज वेक्टर्स विच आर ऑफ सेम क्वांटिटी या सेम टाइप के हैं, उन्हीं को ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। किसी भी दो वेक्टर को हम डायरेक्टली उठा के ऐड नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे भी देखो हम कौन सी फोर्स के बीच में निकाल रहे हैं रिजल्टेंट, दोनों फोर्स के बीच में निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये फोर्स है और ये एक्सेलरेशन है तो हम नहीं निकाल रहे रिजल्टेंट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, वो मैंने लिखा है नहीं, पर ये समझने वाली बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम कैसे निकालेंगे
रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे? व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द टू वेक्टर्स आर डिफरेंट, वो देखते हैं, ठीक है। तो सपोज एक वेक्टर को जिस तरीके से लग रहा है लेट्स से इसको बोल देते हैं वेक्टर ए, और एक वेक्टर कुछ ऐसे लग रहा है, ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है, वेक्टर बी। अब मुझे क्या निकालना है इसका मुझे रिजल्टेंट निकालना है। तो देखो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन करूँगा। कैन आई शिफ्ट दिस वेक्टर पैरेलली, ऐसे इसको मैं पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ। मैं एक शिफ्ट कर रहा हूँ पैरेलली, ठीक है। तो ये जो वेक्टर था मैं इसको कहाँ बना रहा हूँ, मैंने यहाँ पे बना लिया, दिख रहा है यहाँ पे। ये वेक्टर को मैंने सिर्फ क्या किया, पैरेलली शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे रख दिया वेक्टर को। क्लियर है चीज़? ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे ऐड करूँगा मैं, तो उसके कुछ रूल्स है, पहले वो रूल समझ लो। तो ये वेक्टर ए हो गया, ये क्या हो गया, वेक्टर बी हो गया। तो पहली बात, तुम दो वेक्टर्स को कभी ज्वाइन कर सकते हो, जब तुम एक वेक्टर का टेल, ये टेल है वेक्टर ए का, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर ए का हेड, ठीक है। फिर देखो मैंने कैसे ज्वाइन किया, ये वेक्टर बी का मैंने हेड से क्या ज्वाइन किया, टेल। वेक्टर बी का टेल रखा है हेड पे, और ये वेक्टर बी का क्या हो गया, हेड हो गया। तुम इसी तरीके से हमेशा ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा नहीं कि तुम कहीं भी कैसे भी ज्वाइन कर लो। ये रूल है, हमेशा एक वेक्टर का एक हेड और दूसरे वेक्टर का क्या होना चाहिए, टेल होना चाहिए साथ में। क्लियर है चीज? अच्छा, सपोज ना इफ आई जॉइन दिस टेल एंड हेड, ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो कैन आई से नाउ इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स अ ट्राइंगल। क्या बन गया, ये ट्राइंगल बन गया। समझ में आ रहा है? तो ये जो वेक्टर, ये जो मैंने लाइन बनाई है, ये तुमको क्या देगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर देगा। क्या देगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में आ रहा है मैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बोलेंगे इसको, ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इफ यू ऑब्जर्व दीज टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो, टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसको बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बट सबसे इंपॉर्टेंट अभी, ये जो लाइन है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इसको कैसे बनाएंगे आप? लॉजिकली तो ऐसा है कि एक वेक्टर का हेड, दूसरे वेक्टर का टेल, तो इसका हेड तो इसका भी क्या होना चाहिए था, टेल। ऐसा नहीं बनेंगे, उसको ऑपोजिट बनेंगे। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, टेल आना चाहिए था, पर यहाँ पे क्या बनेंगे हम, हेड बनेंगे। क्या बनेंगे, हेड बनेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको, रिजल्टेंट वेक्टर। और इस तरीके से हम हमेशा दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे अगर दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। क्लियर है? हमको ये यूज करना है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो कहने से इस केस में अब रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दैट्स इट। क्या आ गया, वेक्टर ए प्लस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर है? तो प्लीज टेक डाउन नेक्स्ट, स्टेट ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। स्टेट ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो, if two vectors describing the same physical quantity, if two vectors describing the same physical quantity, if two vectors describing the same physical quantity are represented in magnitude, are represented in magnitude and direction, by the two sides of a triangle, taken in order, by the two sides of a triangle taken in order, comma, then the resultant is represented in magnitude, and direction,
कौन रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे ट्राइंगल में? कैन आई से थर्ड साइड? थर्ड साइड क्या रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे? रिजल्टेंट वेक्टर. सो इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नेटिक डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल. बाय द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल. बाय द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल. By the third side of a triangle drawn in the opposite sense. तो अगर देखोगे तो यहाँ पे इस तरीके से ऑपोजिट बनाया है मैंने इसको. ड्रॉन इन द ऑपोजिट सेंस. ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो. अच्छा, यहाँ पे लोगों ने अज्यूम किया कि भाई ये फर्स्ट वेक्टर है और ये क्या है? सेकेंड वेक्टर है. तो ये फर्स्ट वेक्टर का हेड, ये फर्स्ट वेक्टर का टेल. ये सेकंड वेक्टर का हेड और ये सेकंड वेक्टर का टेल. तो लोगों ने ये अज्यूम किया कि ये फर्स्ट वेक्टर है और ये क्या है? सेकंड वेक्टर है. तो बोल रहा है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ब्रैकेट में लिखो, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर से कहां तक? टू द एंड पॉइंट ऑफ सेकेंड वेक्टर. टू द एंड पॉइंट ऑफ सेकेंड वेक्टर. स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? हेड. और एंड पॉइंट को क्या बोलते हैं? टेल. ये याद रखना है, ठीक है? टेल और हेड याद रखना है. फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द एंड पॉइंट ऑफ द सेकेंड वेक्टर. इस तरीके से हम हमेशा ऐड करेंगे दो वेक्टर क्वांटिटीज को जिनका डायरेक्शन सेम नहीं है. इसको प्लीज नीटली बनाओ और ये कॉपी करो. ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ये फर्स्ट वेक्टर है, इसका हेड, इसका टेल. ये सेकंड वेक्टर है, इसके टेल पे हेड ज्वाइन किया, तो फिर इसके टेल और इसके हेड को ज्वाइन कर दिया, तो ये रिजल्ट वेक्टर हो गया है ना? बना खुद से, बना. चल, रिजल्ट बना खुद से. हाँ, करेक्ट. ओके, चलो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की. कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करता है? तो एक प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव. ये वर्ड सुना है कभी अलजेब्रा में? नहीं सुना? अच्छा, मुझे एक बात बताओ. 2 + 3, कैन आई राइट दिस एज 3 + 2? यस और नो? क्या कोई डिफरेंस है? सिमिलरली a + b, कैन आई राइट एज p + a? कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस है इसमें? नहीं है. ए और बी की अगर वैल्यू सेम है तो कोई डिफरेंस है नहीं इसमें. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. क्या बोलते हैं? और वो बोल रहा है कि कैन आई राइट लाइक दिस, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज नथिंग बट इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए. क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ? तो मुझे प्रूफ करके दिखाओ. ये प्रूफ करके दिखाओ. ये कैसे लिख सकता हूँ मैं? ये क्यों लिख सकता हूँ मैं? अब इसका प्रूफ आता है. प्रूफ वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव इन नेचर. ये तुमको प्रूफ करना है. कैसे प्रूफ करोगे इसको? ग्राफिकली तुमको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा और फिर तुम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज़ करो. उसमें कर सकते हो खुद से. चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, ठीक है? तो इसको मैं मान लेता हूँ सपोज वेक्टर बी, और इसको मैं मान लेता हूँ वेक्टर ए. तो उसका रिजल्ट कैसे होगा? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड एंड पॉइंट ऑफ द सेकेंड वेक्टर. तो ये क्या हो गया इसका? ये इसका हो गया रिजल्टेंट. रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा? ए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. क्लियर है? अच्छा, अब मैं अगर सपोज इसको पैरेलली शिफ्ट करूं ऊपर, तो ये ऐसा हो जाएगा? यस और नो? यस और नो? ये ऐसे हो जाएगा. इसको मैं अगर पैरेलली शिफ्ट करूंगा तो ये क्या हो गया? वेक्टर बी हो गया, और ये क्या हो गया? वेक्टर ए हो गया. यस और नो? क्लियर है ये? ठीक है. अच्छा, सिमिलरली इसको भी पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूँ मैं ऐसे यहाँ पे, तो ये इतना हो जाएगा ऐसे. यस और नो? रुको एक सेकेंड. इसको मैं इस तरीके से शिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? ये कितना हो गया? वेक्टर ए हो गया. अब क्या हम लोग यहाँ पे रिजल्ट ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं. ये मेरा क्या हो गया? फर्स्ट वेक्टर. ये मेरा क्या हो गया?
सेकंड वेक्टर। देखो ना, ये वेक्टर का टेल यहाँ पे है, ये इसका हेड है, इस वेक्टर का ये टेल है और ये हेड है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड एंड पॉइंट ऑफ, बना दिया मैंने इस तरीके से। तो ये इसका भी कितना आ गया रिजल्टेंट? सेम आ गया कि नहीं? a प्लस बी। तो इसका भी रिजल्टेंट a प्लस बी, इसका भी रिजल्टेंट a प्लस बी। तो कहने से a प्लस बी इज नथिंग बट इक्वल टू b प्लस है, यस और नो? लिख सकता हूँ मैं। तो इस तरीके से हम प्रूव करोगे कि वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। क्या है वो? कॉम्यूटेटिव। क्लियर है ये? तो हेडिंग दे दो, वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। ये तुमको प्रूव करना है, ये डायग्राम बनाओ नीटली और प्रूव करो। चलो करो फटाफट, ये खुद से करना है, कम ऑन। Finished? So vector addition is commutative. Okay. एक और प्रॉपर्टी देख लो एक बार कि वेक्टर एडिशन इज ऑल्सो, ये हो गया बना के बेटा, लिख के हो गया, ये प्रूफ करके हो गया। ओके। एक और एक है कि वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। क्या मतलब होता है एसोसिएटिव का? देखो ये तुमको पता है, सिर्फ वर्ड्स का मतलब नहीं मालूम। सपोज मेरे पास है a प्लस बी, इसका जो सम है उसको मैंने ऐड किया, किससे? c से ऐड किया। तो कहना है से c विल बी नथिंग बट इक्वल टू व्हाट? c प्लस b विल बी नथिंग बट इक्वल प्लस a, यस और नो? क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसे? भाई इसका सम c के साथ ऐड किया, तो इसका जो सम आया c प्लस b का, और उसको मैंने ऐड किया किसके साथ? a के साथ। दोनों का आंसर क्या होना चाहिए? सेम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव। मतलब मुझे बेसिकली 3 वेक्टर लेने हैं अब यहाँ पे, और मुझे लिखना है कि a वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज नथिंग बट इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c। हमको ये प्रूव करना है कि वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। अब ये कैसे करेंगे? तो मैं तुमको डायग्राम बना के दूंगा, ये करना तुमको खुद से, ट्राई करो खुद से, ठीक है? मैं डायग्राम बना देता हूँ एक बार। लिखो एक बार, पहले हेडिंग दे दो, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। ये एक बार कॉपी करो, ये प्रूव करना है हमको। एसोसिएटिव, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। अच्छा, इसमें और एक चीज़ है, अब ऑब्वियसली ये नो ब्रेनर है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ऑल 3 वेक्टर्स आर नॉन जीरो वेक्टर्स। क्या है ये? नॉन जीरो वेक्टर्स है, इसमें कोई भी नल वेक्टर नहीं है, ठीक है? ये याद रखना है। इस तरीके से कोई डायग्राम दिया हुआ है तुमको, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। तुमको ये प्रूव करना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ट्राई करो मुझसे, चलो कम ऑन, दिमाग यूज करो अपना, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये। कैसे करेंगे? पहले हमको क्या चाहिए? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वो कैसे होगा? ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इसका हेड, इसका टेल, ठीक है? तो रिजल्ट कैसे बनाऊंगा मैं? ऐसे बनाऊंगा रिजल्ट, यस और नो? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, एंड पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर। ये कितना हो गया? ये ऐसे हो गया, ये तुम्हारा रिजल्टेंट आ गया। कितना आ गया ये? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यस और नो? अब मुझे क्या चाहिए? वेक्टर ए प्लस बी और प्लस वेक्टर सी। तो ये मेरा एक वेक्टर हो गया, ये टेल और हेड, ये इसका हो गया टेल और हेड। तो मैं इसको ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करता हूँ। इसका रिजल्ट कैसे होगा? ऐसे हो जाएगा, यस और नो? ये कितना हो गया? ये ए प्लस बी और प्लस सी। कितना समझ में आया? यस और नो? अब अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए ए और प्लस बी प्लस सी। अपने को पहले बी प्लस सी चाहिए। बी प्लस सी कैसे होगा? ये बी वेक्टर है, ये वेक्टर बी का टेल, ये वेक्टर बी का हेड, ये सी वेक्टर है, ये वेक्टर सी का टेल, ये वेक्टर सी का हेड, ये बराबर है सीक्वेंस में। तो हम क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट। कैसे होगा रिजल्टेंट इसका? फर्स्ट पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, एंड पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर। तो ऐसे हो जाएगा, यस और नो? ये कितना हो गया? ये बी प्लस सी हो गया। ये अपनों क्या चाहिए? b प्लस सी प्लस ए चाहिए। तो एक ये वेक्टर हो गया b प्लस सी, और a कौन सा है?
ये ए वेक्टर है, यस और नो? बी प्लस सी का ये टेल है, बराबर, सॉरी बी प्लस सी का ये टेल है और बी प्लस सी का ये हेड है। अच्छा, ए का ये हेड है और ए का क्या है, ये टेल है, दिख रहा है यहाँ पे? तो अब इसको कैसे ऐड करेंगे? ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, कैसे ऐड करेंगे? इसका रिजल्ट क्या होगा? यही वाला नहीं हो जाएगा, यस और नो? नहीं समझा? समझा? और एक ये वेक्टर है बी प्लस सी, बराबर, ये बी प्लस सी का टेल है, ये बी प्लस सी का हेड है। ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए का ये हेड है, ये टेल है, हेड और टेल कनेक्टेड है ना, मतलब ट्राइंगल लगा सकता हूँ, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? यही तो होगा रिजल्ट, यस और नो? फिर से क्या आ गया? ये वही आ गया, फिर से क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये प्रूव हो गया, सेम ही आ रहा है यहाँ पे, तो प्रूव हो गया ये एसोसिएटिव इन नेचर। क्लियर है ये चीज़? समझा तेरे को ये अच्छे से? नहीं समझा? वापस समझाओ। समझ में आ गया पक्का? शर्मा मत पूछ, समझा पक्का? तो कॉपी करो प्लीज़ है वेक्टर बी प्लस सी, ठीक है? प्लीज़ आवाज़ मत गाइस, आवाज़ करोगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, उसको नहीं समझ में आया, उसको समझा रहा हूँ, जब तक सब लोग लिखोगे प्लीज़। वेक्टर बी प्लस सी कैसे आया? देख, ये कौन सा है वेक्टर बी? ये वेक्टर बी का टेल है, ये वेक्टर बी का हेड है, ठीक है? ये कौन सा है? वेक्टर सी है, ये वेक्टर सी का टेल है, ये वेक्टर सी का हेड है। हेड टेल जॉइंट है, प्रॉब्लम नहीं। क्या निकालना है? रिजल्टेंट। रिजल्ट कैसे निकालते हैं? एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल ज्वाइन कर दिया मैंने, तो ये कितना आ गया? बी प्लस सी हो गया। अपने को क्या चाहिए? बी प्लस सी तो आ गया, अब अपने को बी प्लस सी किससे ऐड करना है? ए से। अरे फिर आवाज़ कर रहे हो, फिर हंस रहे हो। तो ये बी प्लस सी आ गया, राइट? अपने को क्या चाहिए? ए के साथ चाहिए। एक वेक्टर ये हो गया अपना बी प्लस सी, और वेक्टर ए कौन सा है? ये वाला है। बी प्लस सी का ये टेल, ये हेड, ए का ये हेड और ये टेल, तो हेड और टेल जॉइंट है, राइट? तो इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट निकालना, तो कौन सा रिजल्ट आएगा? एक वेक्टर का टेल, एक वेक्टर का हेड, ये जॉइन कर दिया, सेम आ गया ना रिजल्टेंट। पहले भी कितना आया था? ए प्लस बी प्लस सी, अब कितना आ गया? ए प्लस बी प्लस सी हो गया, यही करना था। क्लियर है चीज़? तो प्लीज़ लिखो इसको। अब स्टेप्स में कैसे लिखोगे? स्टेप्स लेना पड़ेगा। तो एक काम करो, ये ट्राइंगल्स को नाम दे दो ना, कुछ भी नाम दे दो इसको नाम दे दो। एक काम करो, पी क्यू आर और एस। अब अकॉर्डिंगली ट्राइंगल लो। देखो पहले अपने को क्या निकालता है? ए प्लस बी निकालना था। पहले ए प्लस बी निकालने के लिए कौन सा ट्राइंगल लेंगे? पी क्यू एस, यस और नो? उससे आ जाएगा ए प्लस बी। फिर अपने को क्या निकालना था? ए प्लस बी और प्लस सी निकालना था। तो कौन सा लेंगे आप ट्राइंगल? ये ए प्लस बी और सी, तो कौन सा ले लेंगे? क्यू एस आर, तो उससे ये आ जाएगा। क्लियर है चीज़? लिखो अब, खुद से ट्राई करो, अब खुद से, कम ऑन। ये समझा तेरे को पक्का? तो ले अब ट्राइंगल फटाफट। सी आई विल राइट ऑन द बोर्ड, पर मैं बोर्ड से लिखूंगा, तुम कॉपी कर लोगे, कोई सेंस नहीं बनेगा। आई एम गिविंग यू टाइम टू थिंक। समझ के करोगे तो अच्छा है, नहीं आएगा तो मुझे पूछो वापस। तो पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे? पहले पी क्यू एस ले लो, तो उससे तुम क्या प्रूफ करोगे? ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। फिर हमको क्या चाहिए? वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर चाहिए, तो हम कौन सा ट्राइंगल यूज़ करेंगे? क्यू एस आर, तो उससे वो आ जाएगा। क्लियर है? समझा? ए प्लस बी समझा? ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये रिजल्टेंट आ गया ना, ए प्लस बी। अब हमें क्या चाहिए? ए प्लस बी प्लस सी चाहिए। अब इसको मान के चलिए खुद का एक वेक्टर है ए प्लस बी, ये ए प्लस बी और ये क्या है? सी है। तो अब कौन सा लेंगे रिजल्टेंट के लिए? क्यू एस आर लेंगे ना भाई। ये रिजल्टेंट आ गया ना तेरा, आ गया ना ए प्लस बी प्लस सी। समझा? अब सिमिलरली पहले क्या लेना है अपने को? बी प्लस सी। कौन सा लेगा बी प्लस सी? बी प्लस सी के लिए कौन सा ट्राइंगल लेगा तू? बराबर, पी आर एस ले ले, बराबर। और फिर पी प्लस सी प्लस ए के लिए फिर कौन सा ट्राइंगल लेगा? ए प्लस बी प्लस सी के लिए बी प्लस सी और ए चाहिए अपने को, ये चाहिए और ये चाहिए बेटा। तो कौन सा ट्राइंगल हो गया? पी क्यू आर हो गया, बराबर हो गया। समझ में आया? तो लिखो फिर फटाफट, बात मत करो। तो पहले लिखो इन ट्राइंगल पी क्यू एस, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज नथिंग बट इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। रिजल्टेंट हो गया ये। कर रहा है? कर फटाफट।
अरे ओ मैडम, कहाँ बैठे हो आप? पार्क में बैठे हो, आराम से पीछे मुड़ के बात कर रहे हो। हाँ, करेक्ट। अब देख, सब में आर मत ले, तो क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट आएंगे, सब में आर लेगा तो कन्फ्यूजन होगा। तो R1 R2 डालते हुए जाओ, R1 वेक्टर R2 वेक्टर, सब में आर ले लोगे तो प्रॉब्लम होगा। अरे बाबा काय झालं रे बाबा, तू मला विचार ना काय झालं। पहला ट्राइंगल PQS में यू विल गेट रिजल्ट वेक्टर एज वेक्टर A प्लस वेक्टर B, then you want A plus vector B का bracket plus vector C, then which triangle you will take now? QSR, correct, QSR, that's right। देखो ध्यान से, इन ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं अपन? पहले A प्लस B चाहिए ना अपने को, तो QPS ले रहा हूँ मैं, ठीक है, QPS। इसमें ये PQ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेक्टर A, यस और नो, और PS क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेक्टर B। तो बाय यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वो लिखना पड़ेगा। बाय यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहने से PQ वेक्टर प्लस ये सब वेक्टर्स ही तो है, तो PS वेक्टर इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट? क्या हो जाएगा? QS। ये कैसे निकाला मैंने? बाय यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मुझे क्या मिल जाएगा? ये तुम्हारा रिजल्टेंट है, क्या है ये? रिजल्टेंट है। तो ये मिल गया वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू व्हाट? QS वेक्टर मिल गया तुमको ये, ठीक है। और उन्हें क्या चाहिए? वेक्टर A प्लस वेक्टर B ब्रैकेट प्लस वेक्टर C। तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? QS, और C क्या है? SR। तो ये तुम्हारा रिजल्टेंट हो गया। तो कौन सा ट्राइंगल लोगे तुम? QSR। उसमें लिखो QS इज वेक्टर A प्लस वेक्टर B, SR इज वेक्टर C। अगेन यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लिखते जाओ वो और ऐड करते जाओ। समझ में आ रहा है? अब कर लोगे। अब उसके बाद अपने को क्या चाहिए? पहले B प्लस C चाहिए, राइट। B प्लस C कैसे मिलेगा अपने को? PS एंड SR। तो अपना ट्राइंगल कौन सा हो गया? PSR ट्राइंगल हो गया। उसमें PS रिप्रेजेंट कर रहा है B, SR रिप्रेजेंट कर रहा है C। तो ये तुम्हारा रिजल्टेंट हो गया, ये B प्लस C। अपने को क्या चाहिए? B प्लस C और प्लस A चाहिए। तो PR रिप्रेजेंट्स वेक्टर B प्लस वेक्टर C, और A कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? PQ। तो कौन सा लेंगे ट्राइंगल हम लोग? QPR। तो रिजल्ट आ गया सेम। समझ में आ रहा है? अभी क्लियर है? समझा तेरे को अभी स्टेप्स? पक्का? ठीक है। ये A1 वेक्टर है, A1 वेक्टर का ये टेल है और ये हेड है। A2 वेक्टर का ये टेल है और ये हेड है। A3 वेक्टर का ये टेल है और ये हेड है। A4 का ये टेल है और ये हेड है, और A5 का ये टेल है और ये हेड है, ठीक है। तुमको निकालना है व्हाट इज द रिजल्ट वेक्टर ऑफ वेक्टर A1 प्लस वेक्टर A2 प्लस वेक्टर A3 प्लस वेक्टर A4। तुमको इसका रिजल्ट निकालना है। चालू हो जाओ, स्टार्ट। तो पहले कौन से दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे हम? A1 और A2। निकालो A1 A2 को ऐड करके क्या रिजल्ट आ रहा है उसका। A1 और A2 को ऐड करके रिजल्ट क्या आएगा? तो डायरेक्टली नहीं कर सकते। बताइए। अभी सॉल्विंग करने बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे देखना है सॉल्विंग कैसे है। एग्जाम में तो ऑब्वियसली MCQ होगा, तो फिर वो तुमको डायरेक्टली मार्क करना है। तुमको आंसर आ गया क्या इसका? डायरेक्टली आंसर आ गया इसका? बता दो। A1 और A2 का रिजल्टेंट कहाँ बनेगा? ये वेक्टर A1, ये वेक्टर A2, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, तो इसका रिजल्ट ये बनेगा, यस और नो? ये तुम्हारा हो जाएगा वेक्टर A1 प्लस वेक्टर A2। अब वेक्टर A1 A2 ये पूरा एक वेक्टर हो गया ना पूरा। अब इसको किसके साथ ऐड करेंगे हम? A3 के साथ। तो ये एक वेक्टर हो गया, ये दूसरा वेक्टर हो गया। तो रिजल्ट कौन सा बनेगा? कौन सा बनेगा रिजल्ट इसका? ये वाला। ये तुम्हारा हो जाएगा वेक्टर A1 प्लस A2
और ये कितना हो जाएगा प्लस A3 हो जाएगा। अब A1 A2 A3 को किसके साथ ऐड करेंगे अब A4। तो देखो लो ये एक वेक्टर हो गया ये, और ये दूसरा वेक्टर हो गया, ये इसका हेड इसका टेल, तो रिजल्ट कौन सा आएगा इसका, कौन सा आना चाहिए, यही वाला आएगा। तो इन सब का ऐड होके कितना आंसर आना चाहिए इसका, इज इक्वल टू व्हाट, वेक्टर A5। आ गया आंसर। समझा नहीं समझा, देख A1 A2 का ऐड किया तो क्या आया मुझे, A1 प्लस A2 आ गया। अच्छा A1 A2 अब खुद एक वेक्टर हो गया पूरा, ठीक है। A1 A2 को किससे ऐड किया मैंने, A3 के साथ। तो ये A1 A2 का, ये A1 A2 का एक वेक्टर का हेड और टेल, ये A3 का टेल और हेड, मैंने क्या किया दोनों को ज्वाइन किया, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, A1 प्लस A2 प्लस A3 हो गया, बराबर है। अच्छा फिर मैंने क्या किया, A1 A2 A3 वाला ये जो वेक्टर है इसको मैंने किसके साथ ऐड किया, A4 के साथ ऐड किया। देख A1 प्लस A2 प्लस A3 का ये टेल है और ये क्या है उसका हेड, A4 का ये टेल है और ये क्या है उसका हेड। तो रिजल्ट क्या होगा, इसका टेल सॉरी इसका टेल और इसका हेड हो गया कि नहीं है ऑपोजिट सेंस में, A5 आ गया कि नहीं, किसके इक्वल आ गया, A5 के इक्वल हो गया। क्लियर है, ये इसका हेड है ये इसका टेल है, तो इसका हेड और इसका टेल को ज्वाइन कर दिया तो कितना आ गया, A5 आ गया आंसर। क्लियर है, स्टॉप इट।